others can follow. People, towards the end of the last class, I was talking about combination and permutation. So I told you that combination generally we write as NCR. Here it is all about in how many ways I can select n r distinct items out of the given or available n distinct items. Okay, so one question I gave 1, 2, 3, 4, 5. In how many ways can I select two items? Then the answer is 5C2. There are 5 students. I want to select 2 students. How many ways I can do? I can do 5C2. Now when it comes to permutation, it is all about selection and then arrangement. So I gave a simple example. I have 1, 2, 3, 4, 5. I want to make a 3-digit number. One way is to do it by principles of counting, simply thinking 5 ways, 4 ways, 3 ways. The other way is first I can select, so out of 5 I will select 3 items. So that can happen in 5C3 ways. After selecting, these 3 items will rearrange among themselves in 3 factorial ways. So here you can observe that the dual work is done. The first step is the selection 5C3 and then comes the arrangement, that is 3 factorial. So when I want to do selection as well as arrangement, I should do multiply. Sir, isn't there a direct way of doing this question? Yes, the direct way is called permutation. So here you can use NPR. So by the definition, this thing is actually is equals to 5P3. मतलब क्या कि 5 distinct ways, 5 distinct items में से I want to select 3 distinct items and I repeat, and I arrange them at 3 distinct places. That can be directly done as 5P3. I don't recommend that you think in this line. Always try to think in this way. पहले कितना select करें, फिर कितने को arrange करें. So this will make your life easier and you will hardly require permutation anywhere. Right? So in the same line, I had told that this is relation between NPR and NCR. And then I made you write the definition, very important. People, when I select 2 people, then AB and BA, they're the same selection. So I'm just writing AB. So here 2 people would be AB, AC, BC. So therefore answer is 3C2 and the value of 3C2 is 3. Then I gave you guys a simple example of 5 chairs and 3 persons, and I showed you in 3 different ways. One is the simple product ways. The other is selection and then arrangement. The third one is permutation directly, right? So sir, why are you telling so many ways? Because see, permutation combination is all about applying whichever is applicable easily in the particular question. But if you talk to me personally, I feel this method of selecting and then arranging takes you longer. I mean, takes you far. I mean, it's a better way. Okay. Now, then I wrote that NPR means the number of ways of selecting and arranging r distinct items out of the given n distinct items. I made you guys highlight that n factorial, NCR, NPR, all these are applicable only for the distinct items. In order to appreciate this thing, distinct items, I gave you an example of 10 distinct chocolates and 10 identical chocolates. Allow me to repeat this. If I want to pick a 1 chocolate out of 10 distinct chocolates, that can happen in 10 ways. That can also be written as 10C1. Similarly, 10 chocolates out of 10 chocolates, 10C10, one way. 0 out of 10, 10C0. But when it comes to identical chocolates, we become a little confused. Therefore, you should understand like this. What is the meaning of way? Ankit, अगर हम कहते हैं way, तो way is something that my eyes can differentiate. Right? So ways अगर हम count करते हैं, that is something that my eyes can differentiate. Suppose I told you 5 suppose eclairs chocolates, and all these eclairs chocolates are E and E. In how many ways can I select
5 chocolates out of 5 identical eclairs chocolates, I'm talking about identical, then obviously I can grab all 5 at a time, and that is just one way. If I want to select 2 eclairs chocolates, 2 eclairs out of these 5, then दीपक क्या करेगा? दीपक इसको और इसको सेलेक्ट करेगा, वो बोलेगा सर ई मेरा तरीका, ये दीपक का तरीका। अंकित आएगा, अंकित बोलेगा यार मेरे को ना सर ये वाला, मैं ये वाला उठाया, अंकित ने मुझे ये ई दे दिया। तो कैन माई आईज डिफरेंशिएट बिटवीन अंकित सिलेक्शन एंड दीपक सिलेक्शन? Of course not. Therefore, it is just one way of selecting that 2 eclairs. Therefore, 2 eclairs out of 5 eclairs can happen in only one way. Everybody write okay if you've understood this much, the revision. The revision part. Okay. All right. So let's begin today. First of all, write down 2 power of n concept. It's very important. A lot of questions come from here. Please try to understand. Suppose I have 5 distinct chocolates. सर वो कॉइन वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से बने हुए थे? कौन सा? वो ग्रुप में दिया था ना आपने, कॉइन वाला 1 पैसा। हाँ वो उस पर आएंगे अंकित, ये अभी आएगा, 2 पावर ऑफ n वाले से आएगा, है ना, वो जो शायद सरबजीत ने पूछा था इस पर, है ना, अभी आएगा। Everybody please pay attention. Suppose I have 5 distinct chocolates C1 से लेकर C5. Question number 1. In how many ways can I select at least 1 chocolate? ध्यान से समझना। At least 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 5। So at least 1 chocolate can happen. एक चॉकलेट 5 में से तो 5C1, या तो 5 में से 2, या तो 5C3, 5C4, 5C5. So या तो है, that means added. So this is the answer. In how many ways all I can solve? Then I'll get the value to be 31. Actually नोट में लिखेंगे, नोट में लिख लो ये चीज। बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये चीज होता है कि 2 पावर ऑफ n का जो वैल्यू होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 टिल ncn होता है। सर नहीं समझ में आया सर। मतलब कि अगर 2 पावर ऑफ 10 है तो वो 10c0 से शुरू होगा, 10c1 डॉट 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 टिल 10c10 तक जाएगा। एक ही फॉर्मूला आपको बाइनोमियल का ध्यान रखना है, बस ये वाला। तो यू कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर मैं इसको 5c0 दे दूं और इससे 5c0 ले लूं, तो ये वाला जो पोर्शन है, पहला वाला पोर्शन, इट इज 2 पावर ऑफ 5, अग्री। एंड व्हाट इज 5c0? 5 में से 0 सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, 5c1, that 5c0 is 5, that is 1. So this becomes 2 to the power of 5 minus 1, which is nothing but 2 to the power of n minus 1. नहीं समझ में आया? Please understand once more. What is the meaning of 2 to the power of n by the formula is this. What is the meaning of 2 to the power of n minus 1? लिख लो। 2 to the power of n minus 1 का मतलब क्या होता है? It means number of ways of selecting, underline this word selecting, n number of ways of selecting at least word को underline करो, at least one distinct item out of given n distinct items. Distinct word को underline करो. This is only applicable for distincts. So 2 power of n minus 1 is applicable only for distinct items. Please make a note.
अच्छा, what is the meaning of 2 power of n? It means number of ways of selecting some or no items, because 2 power of n में nc0 भी आएगा, प्लस nc1 से लेकर के ncn तक ये सम वाला पोर्शन हो गया, सम, और ये हो गया नो वाला पोर्शन, नो आइटम, ये है सम आइटम. Then what is 2 power of n? It means number of ways of selecting some or no item. नोट में लिख लो, some or no item out of given n items and all items are distinct. लिखो written, अपने तरीके से लिख लो मेहुल कि 2 power of n क्या है, नंबर ऑफ वेज. एक्चुअली ये वाला फॉर्म ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म में लिखना और ये फॉर्मूला में सेट कर देना. इट विल बी इजी टू वर्क. I'll give you an example. Everybody write okay if you have understood, copied, and you don't want me to repeat. If anybody wants me to repeat, let me know. Repeat, Disha. Okay. Disha, please understand, suppose I give you 10 questions and I'll tell you कि Disha, please select some or no question. First question, select some or no question. तो आप बोलोगे सर some मतलब no मतलब जीरो क्वेश्चन, और आप बोल रहे हो सम भी मतलब एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन या तो तीन क्वेश्चन डॉट 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 till 10 questions. In how many ways can you select zero question? Then answer is 10C0, 1, 10C1, 10C2, 3, 10C3, like this 10C10. Either है ना, either 0 or 1 or 2 तो ऐड करेंगे. And interestingly, this lies in a formula which is 2 power of 10. Therefore, I told 2 power of n means number of ways of selecting some or no n, no element, or no, here in case this question is no question. Suppose I ask Disha, tell me in how many ways can you select some question? कुछ select करना है, तो आप बोलोगे ना सर कि मेरे को ना एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो दो या तो तीन, या तो करके मैं मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो एक क्वेश्चन का मतलब क्या, 10C1, 10C2 डॉट 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 टिल 10C10. इसको जरा फॉर्मूला में लिखने के लिए मैंने एडजस्ट कर दिया, 10C0 ऐड कर दिया और इधर 10C0 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये करने पे आ जाएगा 2 पावर ऑफ 10. अग्री? एंड ये वाला पोर्शन आ जाएगा -1, मतलब माइनस है ऑलरेडी, द 10C0 इज 1. सो व्हाट इज 2 पावर ऑफ n minus 1? Number of ways of selecting some questions, some, kuch, out of n distinct given questions. All understand? Right? Okay, Disha, if this is okay. Wonderful. Anyone else? Deepak, you there? Who else? I didn't actually check the attendance. Those who joined late, please write present. You know, I am actually tracking your chat box. I'm not listening to you guys. That's the problem. Yeah, that's wonderful. Ankit, समझ में आया भाई? अन्वेषा? Ankita is there in the class? Yes, sir. चलो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ले रहा हूं एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा. मान लो 5 फिजिक्स बुक है एंड ऑल दिस 5 फिजिक्स बुक्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग, और मैं ले रहा हूं 4 केमिस्ट्री बुक, मतलब केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3, केमिस्ट्री 4. ये हो गया मेरा 4 केमिस्ट्री बुक्स, अलग अलग, डिफरेंट. एंड सपोज आई एम टेकिंग 3 मैथ्स बुक्स, M1, M2, M3. सो 3 मैथ्स बुक. Those who did not understand, please be patient. अभी आपको समझ में आ जाएगा. Now suppose I want to select at least one book out of these groups. ये पूरे ग्रुप में से मुझे at least one book उठाना है.
फटाक से बताओ चैट बॉक्स में। एटलीस्ट वन बुक, कम से कम एक बुक उठाना है। आपके पास बंडल है, 5 बुक है, 4 केमिस्ट्री, 3 मैथ्स, इतने सारे बुक्स दिया मैंने पूछा इन हाउ मेनी वेज विल यू पिक अप एटलीस्ट, विल यू सिलेक्ट एटलीस्ट वन बुक? जल्दी। अभिषेक 12C1 2 to the power of 12 minus 1। जानेश्वर आप एटलीस्ट का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम एक तो का, तो ज्यादा से ज्यादा तो 2 3 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा? आई थिंक 5 4 9 9 3 12 बुक है ना टोटल, एंड देयर आर 12 डिस्टिंक्ट बुक्स, करेक्ट? अलग अलग हैं, तो ये 12 तक जाएगा। In how many ways you can select at least one book? The answer is 2 to the power of 12 minus 1. Yes sir. Janeshwar, right? Yes sir, no sir? दिक्कत है सर। बोलो। इसमें P1 P3 P4 P5 जो है ये आइडेंटिकल नहीं है क्या? मतलब ये अलग अलग देखना, P1 P2 P3 आइडेंटिकल कहाँ है? ये तो डिस्टिंक्ट है। देखो, जब मैं PPP लिखूंगा तब ना आइडेंटिकल होगा। P1 P2 P3 तो डिस्टिंक्ट है। तो ये 5 डिस्टिंक्ट, ये दूसरा 5 डिस्टिंक्ट, 4 डिस्टिंक्ट, और तीसरा 3 डिस्टिंक्ट, तो टोटल 12 डिस्टिंक्ट आइटम्स हो गया ना। 12 डिस्टिंक्ट आइटम्स में से आई वांट टू सेलेक्ट वन, एटलीस्ट वन। जानेश्वर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट वन बुक, तो इसका आंसर होगा 12C1। समझे? एटलीस्ट शब्द का इंपॉर्टेंस है, इस पे आंसर बदल जाएगा। कम से कम एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एट मोस्ट 3 बुक्स, आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। I am sure you guys have understood what to write. Allow me to write. So at most 3 मतलब कम से कम 0, 1, 2 और मैक्सिमम जाएगा 3। 0 बुक उठाने का कितना तरीका? 12 अलग अलग बुक है, उसमें से 0, 12C0, 12C1, 12C2 एंड देन 12C3। बस इसमें कोई फॉर्मूला सेट नहीं होगा। सर तो क्या करेंगे सर? इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यार। 12C0 का वैल्यू होता है 12, 1। 12 में से 0 उठाना एक तरीका, सो 1। 12 में से 1 उठाना 12 तरीका, 12C1 इज 12। 12C2 आप निकाल लेना रफ में, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे लिखोगे। सिमिलरली 12C3 का वैल्यू निकालोगे, यहाँ लिखोगे, इनको ऐड करोगे। राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड, बट आई एम लीविंग इट एज इट इज। साक्षी कुछ बोल नहीं रही है, समझ में आ रहा है? Ankita, you there? Who else? Mehul and all. Don't leave my chat box. Oh, Mehul, don't leave the chat box. मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि you are not there in the class. Make your presence felt. Next, question number 4. In how many ways can I select? ध्यान से देखना जी. At least one book of each kind. ध्यान से देखो, चलो बनाओ और चॉकलेट पाओ कभी मिलो तो। At least one book of each kind. Same question. Data same है. 5, 4, 3. 5 physics book अलग अलग, 4 chemistry book अलग अलग, and 3 maths book अलग अलग. All right, at least one book of each kind. देवप्रियो, अलग अलग है सारे बुक्स, ध्यान से देखो, मिस्टेक कर रहे हो शायद।
अब 5 केमिस्ट फिजिक्स बुक में से मुझे एटलीस्ट 1 उठाना है इस काइंड का, तो टू द पावर ऑफ आएगा ना जी, टू द पावर ऑफ 5 - 1, ये हो गया फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, टू द पावर ऑफ 4 - 1, और मैथ्स के लिए क्या हो जाएगा, टू द पावर ऑफ 3 - 1। नाउ आई हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच काइंड, मतलब फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, तो प्रोडक्ट। आई मीन द आइडिया इज वेरी सिंपल कि एटलीस्ट 1 फिजिक्स से उठाएंगे तो इतना तरीका आएगा, एटलीस्ट 1, यहाँ एटलीस्ट 1 है। वेरी गुड, समझ में आया जी? All right, no need to simplify. So 3255, if you have solved it, if it is same Ankit Debapriya, then I am writing it 3255, right? Same, यही करके बनाया हो ना, right? Same. Wonderful. चलो अब आ जाओ, ध्यान से समझना। नेक्स्ट लिखो, आइडेंटिकल के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनो। अंकित अभी देखना, 5 फिजिक्स बुक, 4 केमिस्ट्री बुक एंड 3 मैथ्स बुक। यहां पे क्या है, पांचों फिजिक्स बुक सेम है, पी 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 पी, एंड यहां पर चारों केमिस्ट्री बुक सेम है, और यहां पर तीनों मैथ्स बुक सेम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इसमें मैं क्या पूछ रहा हूं, इन हाउ मेनी बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 बुक? पहला क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। At least 1 book of each kind. Some book, some or no book. Ankit, 3C1. Okay, at least 1 book of each kind. 3C1. नहीं समझ में आ रहा है कुछ लोगों को। हाँ, वो पहला वाला का बोला, बस एटलीस्ट 1 बुक वाले का बोला। अच्छा अच्छा, एटलीस्ट 1, दैट्स फाइन, सही है। 12C1, at least 1 book of each kind. 12C. Again, Disha, you are making mistake. Devapriya, 12C1. तो आप 12 आइटम्स डिस्टिंक्ट है क्या, तो आप 12C1 कैसे लगाओगे, मतलब इसके लिए या तो इसके लिए? ओके, आई होप आप समझो। आई रिपीट, जो C होता है ना, इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर डिस्टिंक्ट आइटम्स, NCR. It is not used for identical. Now understand, 1 book, तो at least 1 book मुझे चाहिए, तो कहीं से भी आना चाहिए। या तो कम से कम 1 बुक होगा, या 2 बुक होगा, या 3 बुक होगा, डॉट डॉट डॉट, टोटल कितना बुक होगा? 12 बुक, 12 बुक है ना टोटल, कम से कम 1 बुक। और बताओ मुझे, आइडेंटिकल में, आइडेंटिकल के केस में 1 बुक मुझे उठाने हैं इन 12 बुक से, कितने तरीके होंगे? एक्चुअली मेरे पास एक तरीका, अंकित मैं 1 बुक उठा के आपको 3 तरीका दिखा दूंगा। मैं अगर फिजिक्स उठाया तो आप बोलोगे अच्छा 1 वे, केमिस्ट्री अगर उठाया तो आप बोलोगे 1 वे, और मैथ्स अगर एक मैथ्स उठा ले तो आप बोलोगे 1 वे, समझे? तो 3 तरीका हुआ ना जी, ध्यान से समझना। अब 2 बुक उठाना है मुझे, सो हियर आई वांट टू पिक अप 2 बुक्स, so those 2 books could be what?
यू नो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा मैंने रैंडमली ले लिया है। सो एटलीस्ट वन बुक तो, एक तो 3 आएगा ही, बट 2 बुक जब हम उठाने जाएंगे तो वो 2 बुक कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो 2 फिजिक्स हो सकता है, या तो 2 केमिस्ट्री हो सकता है, या तो 2 मैथ्स हो सकता है, या तो 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री हो सकता है, 1 केमिस्ट्री 1 मैथ हो सकता है, 1 मैथ्स 1 फिजिक्स हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीका हो गया, करेक्ट। When I say 3 books, then it depends कि 3 books of what kind। ये इधर से 3 आ सकता है, इधर से 3 आ सकता है, इधर से 3 आ सकता है, 3। When I say 4 books, then again बहुत सारे combinations। तो this particular question can answer will not be 3, but it will have, I mean a lot of cases will be there। इसको हम लोग अभी पार्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट में जब बताएंगे ये काफी लंबा हो जाएगा। फॉर ईच केसेस आपको बनाना पड़ेगा। सो लीव इट, बट आंसर इज नॉट 3, इट इज वेरी मच मोर देन 3। Now let us see. If I say in this case at least 1 book, so how can I write? You see, these 6 books, these 5 books can be handled in 6 ways। या तो ये 0, या तो 1, या तो 2, या तो 5 books आएंगे। So these 5 can be handled in 6 ways। These 4 chemistry books can be handled in 5 ways। या तो नहीं आएगा या तो 4 आएगा। इसी तरीके से these maths book can be handled in 4 ways। तो ये all ways मैंने निकाल दिया, मगर इसमें से एक केस हम हटा देंगे जब तीनों नहीं आएगा, 0 0 0, that is 1 case down। 5 6 5 30 120 119। so this will be the answer, because उस तरीके से हम नहीं सोच सकते, हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Not clear, not clear। Let's take it like this। Suppose I have maths and chemistry and chemistry। ठीक है, I want to pick up at least 1 book। ठीक है, I want to pick up at least 1 book। मैं ऐसा करता हूं, इसको 2 बना लेता हूं, इसको 1 बना लेता हूं। अब ऐसे समझो, मेरे पास 1 मैथ्स बुक है, 2 केमिस्ट्री बुक है। एटलीस्ट 1 बुक का केस क्या क्या होगा? सिर्फ मैथ्स, ध्यान से समझना, मैथ्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, या सिर्फ केमिस्ट्री और कुछ। और एक ऐसा केस होगा जो कुछ नहीं, 0 0। तो मैं ये समझ रहा हूं दिस मैथ कैन ईदर नॉट कम और इट कैन कम वंस। सो दिस इज द केस, हियर इट कैन नॉट कम और इट कैन कम ओनली वंस। सो दिस मैथ कैन बी हैंडल्ड इन 2 वेज। एक बुक है तो 2 तरीका। दिस केमिस्ट्री क्या है एटलीस्ट 1 बुक का? हाँ, एटलीस्ट 1। एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। एटलीस्ट 1 बुक आपको सेलेक्ट करना है, उसका मैं केसेस बना के समझा रहा हूँ। बिकॉज़ नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि 0 0 से एटलीस्ट 1 बुक नहीं पकड़ सकते, वही तो हम अब इसको माइनस करेंगे। वही मैंने बताया, ये ऑल पॉसिबल केसेस हम लिख रहे थे। 0 0 जो है ऑल पॉसिबल केसेस है। फिर से देखो, अगर तो 2 केस भी तो हो सकता है, मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, मैं एटलीस्ट यस करेक्ट, एक हो जाएगा मैथ्स केमिस्ट्री, छूट गया। ठीक है, तो अब देखो, ये केमिस्ट्री कैन बी हैंडल्ड इन 3 वेज। या तो वो ये नहीं आएगा, मतलब यहां पे, या तो वो एक अकेला आएगा जैसे कि यहां पे, या तो वो 2 आएगा। So this chemistry can be handled in 3 ways। Maths was handled in 2 ways। So total there will be 6 possible cases, all possible, 6 ways। बस पता है इसमें और एक कौन सा केस आ जाएगा? 0,0, मतलब जहां मैथ भी नहीं है और केमिस्ट्री भी नहीं है, तब ना 1 2 3 4 5 और 6 केसेस आएगा। एंड आउट ऑफ दो 6 केसेस मुझे एटलीस्ट 1 बुक में एक केस को हटाना पड़ेगा। इसी कारण मैंने कर दिया 6 - 1। आंसर इज 5 इन दिस केस।
जैसे कि 1 2 3 4 5 केसेस आते हैं। देवप्रियो, दीपांकर समझ में आ रहा है? रूपांकर इधर भी देखो, आई वॉन्ट टू पिक एट लीस्ट 1 बुक, देन फिजिक्स कैन बी हैंडल्ड इन 6 वेज 0 से लेके 5, केमिस्ट्री 5 वेज 0 से लेके 4, मैथ्स 4 वेज 0 से लेके 4। ये ऑल पॉसिबल केसेस। उसमें से क्या हटाएंगे? ऐसा केस जब कोई नहीं होगा 0,0,0, तो एक केस हटा देंगे, 119 आंसर है। उसी तरीके से अगर देखो एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच काइंड, तो 5 बुक्स, 5 फिजिक्स बुक एटलीस्ट 1 चाहिए। तो कितना तरीका होगा? या तो एक अकेला, या तो 2 फिजिक्स, या तो 3 फिजिक्स, या तो 4 फिजिक्स, या तो 5 फिजिक्स। ये 5 तरीका होगा। फिर केमिस्ट्री का 1 बुक ऑफ ईच काइंड, तो 4 तरीका। मैथ्स का 1 बुक ऑफ ईच काइंड, तो 3 तरीका। 60 वेज आर देयर। सर उधर ये एटलीस्ट 1 बुक वाले में हम लोग -1 क्यों कर रहे हैं? -1 क्यों कर रहे हैं अंकित? क्योंकि इधर देख, इससे समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे 6 -1 क्यों किया। बिकॉज ये 0 वाला केस तो हमें इसमें नहीं चलेगा ना। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक तो चाहिए। कोई भी बुक नहीं लिया, वो वाला केस तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पर भी, यहाँ 3 केसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो सारे पॉसिबल केसेस -1। ठीक है। अब देखो सम बुक, आर्यमा इधर ध्यान देखो, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सम बुक इज सेम एज एटलीस्ट 1 बुक। करेक्ट अंबालिका? सम बुक इज सेम एज एटलीस्ट 1 बुक। तो इसका भी आंसर हो यही हो जाएगा, 6 into 5 into 4 -119। अब देखो सम और नो बुक, तो any smart guy will tell sum or no book answer is nothing but 6 into 5 into 4, क्योंकि 0 वाला भी केस चलेगा। Are you able to follow? People, I'll give you one more example for you to practice. Let me know, okay, if you, this much is fine. अन्वेषा बोलो भाई। वेरी गुड, प्रैक्टिस करेंगे जी इसको। 7 identical dairy milk, 4 identical eclairs, and 8 identical suppose milky bar। आइडेंटिकल का केस है। रिपीट the 3 questions, 4 questions. Yeah, repeat the 4 questions. Oh, ये हटेगा नहीं। खैर, I hope you understand. Repeat करो जल्दी से and write down. Then when I do, you match the answers. Anvesha says done. Anybody else? ये 7, अच्छा, ये जो डेयरी मिल्क है, ये जो एक्लेयर्स, ये तो आइडेंटिकल नहीं हो सकता ना। या सो एटलीस्ट 1 चॉकलेट का 7 4 11 और 8 19 है ना। एनीवे, सो एटलीस्ट 7 dairy milk can be handled in 8 ways, 4 eclairs can be handled in 5 ways, and 8 milky bar can be handled in 9 ways. ये all possible cases हो गया। -1 करेंगे, वो 0 वाला केस हटाएंगे। प्लीज ये वाला कॉपी कर लेना जो मैंने बताया था।
लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कॉपी, वांट मी टू शो इट वंस मोर. फिर क्वेश्चन क्या था जी? At least one book of each kind, at least one chocolate of each kind, at least one chocolate of each kind. तो आई थिंक ये एटलीस्ट वन है, इसका जीरो नहीं चलेगा. सो 8, सॉरी, सो दिस विल बी हैंडल्ड इन 7 वेज. पता है ये 7 क्या होगा? 1 2 3 4 से लेकर के 7 तरीका, इंटू 4 इंटू 8. थर्ड, some chocolate, then answer is same as this, 8 into 5 into 9 minus 1, and some or no chocolate, then answer is exactly 8 into 5 into 9. Right, same if you all have got the same answer, right? Same. Wonderful. ठीक है, चलो अभी देखो, let's take, write down this one, India, और इधर एक वर्ड लिखो, मान लो सेंटेंस. ध्यान से सुनना जी, मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं. द फर्स्ट वन इज 6 letter words. I want to make 6 letter words. See, permutation combination can be studied well if you understand it by comparing, so that you don't make negative mistakes. So there are 6 letters. एक और क्वेश्चन ऐड करना यार, इधर एक और क्वेश्चन इधर ऐड करना, इसमें वर्ड लिख लो मार्केट. ठीक है, ये कितना है? 3 4 5 6. इधर देखो 6 letter words. How many words can I make using these 6 letters, all the 6 letters? So 1 2 3 4, all 6 are distinct. Everybody write the answer. First question. 6 factorial. Very good. 6 factorial. Because there are 6 letters and all of them are distinct. So answer is 6 factorial. Very good. Now here I want to make 3 plus 2 5 letter words, and all the 5 letters are not distinct. So my answer will be 5 factorial divided by, there are 2 i's which are common. Yes, Debapriya is right. Divided by 2 factorial. Very simple. Now the problem is with this question, if I give you 4 letter words. See, actually there are 8 letters, but I am asking you how many 4 letter words can you make? Then comes the problem. मतलब कि यहाँ पर लेटर्स ज्यादा है. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मार्केट में मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. मार्केट वर्ड में मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो आंसर क्या होगा? 6 लेटर्स हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा, या तो 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, या तो 6p4. अग्री ना? नॉट 6c4 साक्षी, 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल. कितने सारे वर्ड्स बनाएंगे हम? ठीक है, this one is important of its kind because many questions will come of this kind. So let me take out this and understand. So मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं? सेंटेंस. अगर नंबर ऑफ लेटर्स कम हो जाएं, जैसे कि 8 है, आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे? इसमें क्या है, अगर आइडेंटिकल नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तब तो ये तरीका लगेगा. अंकित, अप्रिशिएट द डिफरेंस. अगर अलग अलग है तब तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. कैन एनीबॉडी ट्राई? सेंटेंस वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? सर किया है सर मैंने. हाँ, आपने बनाया है. चलो, तो इस वर्ड को कैसे बनाएंगे जी? अब यहाँ पर देखो, देयर आर सम आइडेंटिकल्स.
So what are the different groups I am having? So S एक ग्रुप है, E 3 E's जो है ये अलग ग्रुप है, और आई थिंक 2 N जो है वो एक अलग ग्रुप है. और क्या बच गया? 3 2 5 6, और क्या बच गया जी? सॉरी 3 2 5 1 6, और S बच गया, T बच गया, और C बच गया. 8 लेटर्स हो गया. अब ध्यान से देखो, आई वॉन्ट टू मेक 4 लेटर वर्ड, बट इसका कॉम्बिनेशन होगा जी. क्या कि ऐसा हो सकता है कि ऑल द 4 आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सो उसका केसेस बन जाएगा 1,1,1, ऑल 4 ऑफ द डिफरेंट काइंड्स. मतलब एक ऐसा S, यहां से आ जाए E, यहां से आ जाए N, और यहां से आ जाए C. इस एक ऐसा वर्ड कि N T S C, एक ऐसा वर्ड आ सकता है. सो कितने वर्ड्स बनेंगे जो ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट? ये एक केस बन जाएगा. और कोई केस बनेगा क्या? आई थिंक एक ऐसा केस बनेगा जो ऑल 3 ऑफ वन काइंड, ध्यान से समझेंगे, एंड द अदर वन इज ऑफ एनी अदर काइंड. जैसे कि सर ई ई ई एन, 3 ई आएगा, उसके साथ एन आएगा, तो 3 ई के साथ एन, 3 ई के साथ एस, 3 ई के साथ टी, 3 ई के साथ सी. So all 3 of one kind, the other of the other kind. Understand? What is the other case? It looks to me that दो का भी तो केस बनेगा. 2E 2N मतलब 2,2. Is there any other case? 2,1,1 ऐसा भी केस बनेगा. 2 of one kind जैसे कि double E, and this one of the other kind मतलब S, and this one of the other kind मतलब T. ऐसा केस और भी बनेगा. Double and TC. So there would be many cases, but it is not humanly possible for me to actually write down all these. So I am going to do it efficiently, calculate it. Now, for this I will be needing the help of combination to understand. या तो I can think like this कि देखो 5 groups है, 1 2 3 4. Allow me to explain this question properly, because no matter how many times I explain, many people don't understand. So please understand clearly. So all 5 are of different kinds. Out of 5 different kinds, you want to choose 4 different kinds. 4 5C4. 5C4 is same as 5C1. That is again 5 ways. Answer is 5 ways. But 5 ways of actually selecting. But after selection, what you're going to do? After selection, what are you going to do? You are going to arrange them at 4 different places, and that can happen in 4 factorial ways. So these many words will be formed. Using all the letters of this. Next, 3,1. Now see, these 3 will only come from one group. तो एक ग्रुप में से एक ही ग्रुप उठाना, तो एक ही तरीका. और जो एक और जो आइटम है, that is of other kind, so that can come from here or here or here or here. So there are 4 ways of coming. So therefore there will be these many ways. And how many words can be made? So these are the ways of selecting. After selection, how many arrangements? So 3 of the same kind, say E and then T. ये खुद में कितने तरीके से अरेंज कर सकता है? 3 factorial divided by, sorry, not 3 factorial, this is 4 factorial divided by 3 alikes, 3 factorial. I hope you understand. Next, come to this. This is the answer. 2 of the one kind, 2 of the other kind. तो एक केस क्या बचेगा? E N. बस यही ना केस बनेगा. सिलेक्शन की बात कर रहा हूं. तो this 2 of one kind
can come in one way from one, and this 2 of the other kind can come in the one way from the other one. So there will be only one ways multiplied by how many arrangements for that? 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. Next, please pay attention on this. Out of 5 distinct items, I want to choose 2 of one kind, but 5 will not have the choices. मेरे पास choices तो सिर्फ 2 है, जहां से कि 2 of one kind आएगा. तो ये मेरे पास 2 ही तरीका है ना जी, या तो डबल ई आएगा या तो डबल एन आएगा. तो 2 ऐसे ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो ऑफ सेम काइंड हो. तो दैट कैन हैपन इन 2C 1 ways. Next, this one of the other kind. So अभी आपने एक ही काइंड का लिखा है, तो अभी आपके पास 4 काइंड और बचा हुआ है, टोटल 5 काइंड है. तो आउट ऑफ 4 काइंड आई कैन हैव 4C1. देन 3 काइंड हो गए, देन अगेन आई कैन हैव, और आई कैन जस्ट हैव 4C1. इसका देखो क्या क्या बनेगा, डबल ई के साथ NT, डबल ई के साथ TC. तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि अब जो 4 काइंड बचा उसमें से 2 अलग अलग काइंड चाहिए. दैट कैन हैपन इन 4C 2 ways. जैसे कि मान लो ये डबल ई आया, तो अब बच गया कौन, 1 2 3 4. इन 4 में से अब आपको 2 काइंड का उठाना है. दैट कैन हैपन इन 4C 2 ways. 2 आइटम उठाना है, 2 अलग अलग काइंड, अलग अलग टाइप का. सो दिस इज द सिलेक्शन. अरेंजमेंट क्या होगा, 4 factorial 2 of the same kind, so divided by 2 factorial. Right? Okay, those who understood. We can take one more example. Ouch. इसको सॉल्व कर लो जी, कोई मुझे बताओ सॉल्व करके वैल्यू कितना आ रहा है. 5C4 is same as 5C1, so 5 into 24, so 120. ये 4 into 4 16. ये वाला 24 by 4 6. ये वाला 6 दूनी 12 12 12 144. कितना आ रहा है जी, 144 है. So 286. So total 286 words बनेंगे. Everybody start writing. Yes, no, repeat. I know this is little critical, but you have to understand this way. एक एग्जाम्पल भी अभी हम लोग लेने वाले हैं, एक और आप प्रैक्टिस करोगे. सो लास्ट वाला रिपीट करेंगे. यस मैं हूँ, लास्ट वाला मैं रिपीट करूंगा. देखो, द लास्ट वन इज आई वांट टू मेक 2 of one kind, 1 of the other kind, and that other 1 of the other kind. एग्जाम्पल, डबल ENT या तो डबल EST या तो डबल NTC. तो जो एक काइंड का आएगा 2 आइटम, वो तो 2 ही चॉइसेस है. तो देखो ये 2C1 हो गया. अब मान लो ये डबल ई वाला केस आया है, अभी भी तो मेरे पास 4 केसेस बचे हुए हैं. आउट ऑफ दीज 4 केसेस आई वांट टू चूज 2 सच केसेस. 4 अलग अलग आइटम्स में से मुझे 2 आइटम चुनना है, तभी तो मेरा 2 अलग अलग होगा. तो 4C2. सो दिस इज सिलेक्शन. People, this one is selection, this one is arrangement. This is selection, this one is arrangement. This portion is selection, and this portion is arrangement. So everybody please लिख लो कौन सा arrangement है कौन सा selection है, because
ये ग्रीन कलर वाला ये अरेंजमेंट हुआ। अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कम रहते हैं जनरली, ये लोग सिलेक्शंस के क्वेश्चंस ज्यादा दिखते हैं। सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स कंसीडर अ वर्ड एंट्रेंस। मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग बनाओगे बाद में, पहले अभी ध्यान से सुनो। एंट्रेंस में पहले आइडेंटिकल ग्रुप्स पहले बनाओ। सो फर्स्ट स्टेप, मेक द ग्रुप्स। आपको बनाना है यू नो कितना, पहले ग्रुप्स में लिख लेता हूँ। कितना ई है जी? 2e। फिर n कितना है? 2n। दो ग्रुप हो गया। t का अकेला एक ग्रुप आएगा, r का अकेला एक ग्रुप आएगा, a का अकेला ग्रुप आएगा और c का अकेला ग्रुप आएगा। देख रहे हो? 1 2 3 4 8 लेटर, 2 2 4 5 6 7 8 लेटर। मुझे ना 8 लेटर है, मुझे बनाना है, 2 क्वेश्चन में बनाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ, पहला लिखो, नंबर ऑफ 4 लेटर सिलेक्शंस कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। नंबर ऑफ 4 लेटर सिलेक्शंस एंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। अभी मैं 2 टुकड़े में बांट करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले नंबर ऑफ 4 लेटर सिलेक्शंस, इसको बनाने के लिए मैं सोचूंगा कि यार क्या क्या केसेस बनेंगे। एक तो ऐसा केस बनेगा कि 4 अलग अलग ग्रुप से आ जाए, 1,1,1, ये डिनोट कर दिया। और कोई बताओ जी? एवरीबडी कैन स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट ग्रुप 4 लेटर वर्ड का क्या बनेगा? 2 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अदर काइंड। अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन करूंगा। एवरीबडी कैन स्टार्ट राइटिंग, क्या क्या केसेस बनेगा। और क्या बनेगा जी? 2 ऑफ वन काइंड, 1 2 1 2 1 1। यस, वेरी गुड। आई थिंक और कोई केस नहीं बन रहा होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही है और 4 चाहिए। 2 2 3 1 वाला केस नहीं बनेगा। अन्वेषा, कैन यू थिंक व्हाई 3 1 नहीं बनेगा? सर 3 ऑफ वन काइंड तो अवेलेबल ही नहीं है सर, आप सिलेक्ट कैसे करोगे सर? राइट, चल 4 ऑफ ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो काइंड्स कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 काइंड्स आर देयर। So from 6 different kinds, I want to select 4 different kinds. मेहुल अभी ध्यान देना, क्लियर होगा। So 64 का कितना वैल्यू होता है? 6 5 30 पर 15। ठीक है, अब आ जाओ 2,2। सर एग्जाम्पल दिखाओ तो सर। 2,2 क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ऐसा कुछ 2e 2n, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे अभी हम, ये सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। सो 2e 2n, और कुछ बनेगा क्या यार? एनीबडी? सर 2n 2e, सर n e। अरे यार ये तो फिर अरेंजमेंट आप कर रहे हो, मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ सिलेक्शन करो। तो आई थिंक एक ही केस बनेगा ना। तो आप ऐसे समझो कि फ्रॉम 2 अवेलेबल केसेस आई वांट टू चूज 2 सच केसेस। 2c2, दैट इज वन वे, जिसको आप ऐसे भी सोचते हो, one of this kind can come in one way and the other of 2 kind can also come in another way. That's 1 into 1, so one way. लास्ट वाला देखना मेहुल, शायद इसमें आपको दिक्कत थी। अब देखो ये जो 2 ऑफ वन काइंड है, सर इसका एग्जांपल पहले बताओ। जैसे देखो डबल ई टी आर, डबल ई एन ए, ऐसे बहुत केसेस बनेंगे। उसी तरीके से एन वाला भी बनेगा, डबल एन टी आर, डबल एन ई सी, बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो मुझे सोचना है कि कितने केसेस सिलेक्शन में आएंगे। तो मैं लिख तो नहीं सकता, सो आई थिंक लाइक दिस कि 2 ऑफ वन काइंड कितने तरीके हैं आने का, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो 2 तरीका, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि दिस इज ऑफ अदर काइंड एंड दिस वन इज ऑफ सम अदर काइंड, बट ओनली वन काइंड हैज बीन पिक्ड, करेक्ट? अभी तक आपने 2 लिखा, मतलब आपने 2 ऑफ वन काइंड बनाया, यानी आउट ऑफ 6 काइंड्स 5 काइंड्स आर लेफ्ट।
and out of those 5 different kinds, you want to choose those 2 different kinds. So 2 into 10 is 20. 20 plus 1 plus 15. कितना आ रहा है? 35, 36. Answer is 36. Correct. Right, got it, everyone. Some of you are not writing anything. People don't be embarrassed कि सर इतना डिफिकल्ट चीजें बता रहे हैं सर, मेरे को तो समझ में नहीं आता. ऐसा जरूर होगा कि आप घर पे दोबारा जब देखोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा. अगर आप पहला वाला ध्यान से सुन रहे हो, एंड कोशिश आपको ये करना है कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज यू नो दैट्स अगेन टेकिंग योर टाइम. तो सर अभी वाला क्वेश्चन है, पिछले वाले में मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल दिया था, ये ग्रीन वाला पोर्शन एक्स्ट्रा काम किया था. अभी मैंने सिर्फ सिलेक्शंस किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था नंबर ऑफ वर्ड्स. क्यों अन्वेषा? नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स. तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउ मी टू चेंज द कलर ऑफ द पेन. तो पहले मैं सिलेक्शन कर लिया, पहला वाला आएगा 15, पहला केस आया 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा जी? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों अलग अलग है. ये 1, 1, 1, 1 का केस. नेक्स्ट 2, 2. तो 2, 2 के केस में क्या होगा? आंसर ऑलरेडी आ चुका है 1. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. And the third case is already I have got 20 selections. 20 selections 2, 1, 1 का. And हर selection पर arrangement कितना होगा? 1, 2, 4 ways 4 factorial divided by 2 of the same kind, 2 factorial. Understand? So 15 into 24. This is 1 into 24 by 4 6. So 20 into 12. This is 240. This is 6. This is 360. 360. So answer is 500, 600, 666. इतने 4 letter words बनेंगे. Right? Okay. Everybody. बहुत हो गया है. 606. 606. इसका 606. एक प्रैक्टिस करेंगे. बनाओ, जल्दी करना, ठीक है? मगर effervescence, number of 4 letter selections, number of 4 letter word. जल्दी बनाओ. Right, done. Oh. Okay,
समय कम है, मैं रॉ बता दे रहा हूँ और आप बाकी आप लोग बनाओगे। पहला नंबर ऑफ 4 लेटर सिलेक्शंस, तो 4 लेटर का क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1, 1, 1, 1, पहला केस। दूसरा आई थिंक बनेगा 2, 2। तीसरा 2, 1, 1। बस, तो सिलेक्शंस कितने होंगे? 4 ऑफ 1 काइंड। यस, वेरी गुड। ये 5 है अलग ऑफ 1 काइंड, तो एक 4 ऑफ द सेम काइंड, मतलब सिर्फ 4 लिख दो। ठीक है, सो 1 कितना ग्रुप्स हो गया ये? ठीक है ना जी? 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 है ना? 4, 12, 13, ठीक है। सो 13 C4 3, 1 3, 1। yes, very good। 3 of one kind, 1 of the other kind, ये वाला भी मिस हो गया। That's what I wanted you guys to check out। Anything else? 2, 2 हो चुका है ना। अब देखो ये वाला 2, 2। सो ये 2 कौन कौन सा ग्रुप दे सकता है? ये ग्रुप दे सकता है, ये ग्रुप दे सकता है, ये ग्रुप दे सकता है। सो 3 ग्रुप अवेलेबल है। 3 ग्रुप में से आपको 2। सर पहले वाले में तो 13 ग्रुप्स नहीं है, वहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप्स है। अरे यार शिट, 6 ही 4 होगा सर। करेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन भी तो है। यस सर 7 से 4। मैं 7 ही लिखने वाला था, गलती से लिखा। हाँ, 7 से 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3 ग्रुप अवेलेबल है, 1, 2 और 3। 3 ग्रुप में से मुझे 2 ग्रुप उठाने हैं। 3 तरीका ही होगा। तो देखो EEFF, FFCC या तो EECC, 3 ही आएगा। 3C2 का वैल्यू होता है 3। नेक्स्ट 2 ग्रुप्स कौन कौन देगा? 1, 2, 3 ऐसा ग्रुप है जो 2 का ग्रुप देगा। सो 3C1, ये 2 है मतलब ऑफ 1 काइंड। तो 3 ऐसे ग्रुप में से मुझे एक ऐसा ग्रुप उठाना है। सो दैट कैन हैपन इन 3C1 वेज, या तो डबल ई, या तो डबल एफ, या तो डबल सी, 3 तरीका। और अब 2 ऑफ अदर काइंड, तो 7 ग्रुप में से एक ग्रुप उठ गया, तो टोटल अब 6 ग्रुप बचा। 6 ग्रुप में से आपको 2 ऑफ अदर ग्रुप्स बनाना है। सो यू टॉक इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स। 4 ऑफ 1 काइंड, एक ही केस, ऑल ई, 1 वे। 3 of one kind and 1 of the other kind. 3 cannot come from here, 3 cannot come from here, 3 can only come from here. So 1C1, that is just one way. And 1 can come from any other group. So out of 7 group, 1 group is gone, so this is 6. So this is 6. 7 से 4 का वैल्यू बता भाई, 7 into 6 into 5 है ना, and 3 factorial, that is 6. 4 factorial कट जाता है, 3 factorial is 6, 35. So लिख लो 35. So 35 plus 3, ये कितना आ रहा है यार? 3 into 15, 6 into 5, 30, 30 by 2, yes 15. So this is 45, this is 1, this is 6. So our answer is, your answer is 35 plus 3 plus 45 plus 1 plus 6. कितना आ रहा है? 10, 70, 80, 90। कितना आ रहा है जी? 70, 80, 90। That's it, good. ठीक है, सो इसी तरीके से नंबर ऑफ 4 लेटर्स भी आप निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। Everybody getting same or any different answer? Let me know. Right, same. आगे बढ़े, चलो। Now let us take this some easy ones. Let us finish this part. Suppose there are 6 men and 5 women. Don't consider these men to be identical, obviously, because 6 men cannot look like identicals. Obviously, if it's given like this, they are different.
So 6 men are there and 5 women are there. In how many ways can you select 5 members? ये schools में आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा practice कर लेते हैं. In how many ways can you select 5 members? No condition. Answer. Select 5 members. So 6 plus 5 11. 11 में से आपको 5 member बनाना है. सिर्फ members choose करना है. 11 से 5. ठीक है? That is the first question. In how many ways can you select 5 members such that, now conditions, at least one woman, जल्दी बनाओ. I'm sure you can do this. One particular woman is always selected. Okay. Now I think first one हो गया होगा. At least one woman. So we could have at least, that is 25 one, 20? 25. Okay, देखते हैं. At least one woman, so I could have 1 woman or 2 women or 3 women or 4 women or 5 women. तो जब 1 woman होगा, then the 5 members का group बनाना है, then the 4 has to be men only, no? So 1, 4, 1 woman, 4 men. In the like manner, or I could have 2 women, then the remaining 3 would be men. समझ में आ रहा है? उसी तरीके से लास्ट में क्या होगा? 5 women, 0 men. But I think better मैं ये कर लूं कि सारे केसेस में से मैं 0 women वाले केसेस को हटा दूं, because 0 women नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 woman चाहिए. समझ में आ रहा है? So what I can directly do from all possible cases, what is the all possible cases? 11C5. ऐसे केसेस हटा दूं जहां 0 woman है, then the remaining has to be 5 men only, right? So 5 men can happen from 6 men in how many ways? That's it. This is the answer. Write okay this one if you have understood. Everybody. साक्षी समझ में आ रहा है आपको? मोहिना she is not there. क्या नाम है आपकी फ्रेंड श्रेया? दीपांशु is there. दीपांशु रूपांकर is there. दीपांशु नहीं है लगता है आज. So 5 members, at least 1 woman. ये वाला तो ये बात होगी ना कि at least 1 का मतलब होता है total minus 0. वही वाला किया. So at total cases में से 0 woman का केस को हटा दिया. Now next comes 1 woman, one particular woman is always selected. So see here, in this cases where one person is always selected, तो इसमें या तो one person is always rejected, तो इसमें हम ऐसे सोचेंगे कि NCR का जो डेफिनेशन होता है उसमें ये है कि आउट ऑफ n अवेलेबल आइटम्स, तो अगर आपको मैंने एक वुमेन ऑलवेज सिलेक्टेड कह दिया है तो आपके पास अवेलेबल आइटम तो सिर्फ 10 होगा ना, क्योंकि एक वुमेन का कुछ रिजर्वेशन है कि कुछ है. शी हैज ऑलरेडी कम, वो आ गई, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. तो वंस शी इज ऑलरेडी देयर, सो यू ओनली हैव 10 चॉइसेस. आउट ऑफ दीज 10 चॉइसेस यू हैव टू मेक selection of, everybody start writing. How many? 4, 5, 2. Can somebody tell me 5, 4 क्या होगा? Nobody writes. All right. So out of 10 choices, I just have to make 4 choices now because one person is already there. One woman is always selected. तो हमारे पास ये चॉइस कहाँ रहा? So answer is 10C4.
लिखो एक और क्वेश्चन. One person is always rejected. Can somebody write the answer in the chat box? Out of same 6 men and 5 women, 6 men and 5 women, one person is always rejected. All right, so you can see that NCR again definition is out of n available items. So since one person is always rejected, so he is no longer in my choice. So I just have 11 minus 1, 10 people as the choice. अंकित समझ में आ रहा है? So out of those 10 people, how many people I have to select? Definitely I have to select here 5 people now because rejected है, वो तो ग्रुप में आया नहीं ना जी. आपको 5 का तो ग्रुप बनाना है ना. So you know in books they will write कि NCR में m number of items always present and stuffs like that. मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बनाओ जी. मान लो 10 सोल्जर्स हैं. You have to select 6 soldiers. Condition number 1, 3 always selected. 3 तो already है. 2 of them are always rejected. आंसर लिखो फटाफट. 3 always selected, 2 always rejected. They are very fundamentals. साक्षी क्या हुआ, नहीं लिख रही है, नहीं क्लियर हो रहा है. अभी एग्जाम्पल जो दिया, इज दैट क्लियर? दीपक, ज्ञानेश्वर, जब मैं क्वेश्चन पूछूं छोटा सा है, कीप योर कीपैड रेडी, थ्रो द आंसर. Only 1 or 2 people are answering, others don't watch like a movie. Dhaneshwar, always selected, always rejected is very important. Okay, so 3 always selected. Disha is writing 7C3. All right. So out of 10, since 3 are already there, so ये -3 मतलब मेरे पास सिर्फ 7 options है. From there, since already 3 selected is, I just have 3 more selections to do. Now 2 always rejected. So out of 10, I just have to choose from 8 क्योंकि 2 तो है ही नहीं, they are rejected. So my choice is only available choices are only 8. From that, anyway I have to use 6. Very good, Mehul. Wonderful. So answer is 8, 6. This is a very important one. I'll give you a question in the same line to really understand its application. Suppose, I don't know, in Kolkata, did you ever see any double-decker bus? I think in Mumbai and all, you have double-deckers still. Many places they have stopped. Suppose there is a double-decker bus, okay? ऊपर भी नीचे भी. So total capacity is 110. Total capacity लिख लो. ऊपर नीचे मिला के 110 लोग बैठ सकते हैं. और कैपेसिटी क्या है? 50 ऊपर एंड 60 कैपेसिटी है नीचे. More people are seated down. कैपेसिटी का डिवीजन कैसे है? 50 ऊपर है और 60 नीचे है. 110 हो गया. In how many ways can the passengers be accommodated? People, some of you might think कि I don't understand sir, arrangement वाला question है कि distribution का है. I think it's very practical. इसमें अगर कह रहा है accommodated, then our arrangement is not important. Then how many ways can the passengers be accommodated if condition क्या है? 15 refuse. 110 people बाहर खड़े हैं और 15 लोग रिफ्यूज करते हैं कि भाई मैं अपर डेक में नहीं जाऊंगा. And 10 they are refusing, 10 particular people are refusing
कि भाई मैं लोअर डेक में नहीं जाऊंगा. I hope you understand the question. Please try this. 110 is the capacity, 50 up, 60 down. In how many ways can 110 passengers be accommodated such that 15 refuse to go in the upper deck, 10 refuse to go in the lower deck? Take a moment. Given you 1 minute, try it. Anvesha, you can do this. Think. Just now, I have discussed some theory. Based on that, you have to do this question. Okay, people, first of all, answer this question. Suppose there are 110 people. I want to make two groups, one group containing 50 people and the other group containing 60 people. ध्यान से समझो, without condition. ये इसको रफ में लिख लो, नोट्स में लिख लो. How do we make different groups? तो अगर 110 people, I want to make 50 people in one group, then how many ways I can do the selection? 110 C 50. अब बच गया कितना? 110 में से 50 को मैंने चुन लिया तो 60 बच गया. 60 में से अब मुझे 60 को चुनना है. 60 से 60 is 1. Come on. 60 C 60 is 1. So my answer is simply 110 C 50. People, stop solving. Listen here first. Or I can also do it the other way. Ki out of 110 people, first of all I'll select 60. बच जाएगा 50. 50 में से फिर मैं 50 को चुन लूंगा. But 50 C 50 is 1. So answer is simply 110 C 60. In fact, these two are equal. 110 C 50 is actually equal to 110 C 60 because NCR is actually equal to NCN minus R. Agree? This is very important. The division of the group without condition. इसका ये मतलब है कि अगर मैंने 50 को सेलेक्ट किया एक ग्रुप के लिए, then automatically दूसरा ग्रुप में 60 चला जाएगा. There is no worry. So if I have 10 people, I want to make a group of 2 and 8. तो 10 में से अगर मैं 2 का ग्रुप बना लेता हूं, चुन लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली 8 जो होगा वो दूसरे ग्रुप में चला जाएगा. सो अगर कहता है कि 20 में से आपको 12 और 8 का ग्रुप बनाना है, आंसर इज 20 से 12. 40 में से आपको 8 और 32 का ग्रुप बनाना है, आंसर इज 40 से 32. समझ में आ रहा है? Right? Okay, if you understood this. This is the case in case the number of people are different. Identical case में थोड़ा सा अलग होगा, मैं अभी बताऊंगा. चलो आते हैं इस क्वेश्चन में. Somebody has given an answer. Mehul was writing something. No? Disha, what do you say? Ankita, Anvesha, Rupankar, understood? Okay, now please understand, since 15 people and 10 people are refusing, so मान लो मैं कंडक्टर हूं, मेरे पास 100 लोग खड़े हैं, मुझे इनको एकोमोडेट करना है. जब 15 लोग ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिए तो मैं I can't force them because refuse is like already rejected.
So they are already rejected. So out of 110, this 25 people are already gone. So I just have 85 people from which the conductor is going to make the decision. अब 85 लोगों को इसको बांटना है दो ग्रुप में, अपर डेक और लोअर डेक. कोई कह सकता है अपर डेक में वो कितना को बिठाएगा? क्योंकि 10 लोअर डेक को रिफ्यूज किया है, दैट मीन्स वो 10 डेफिनेटली अपर डेक में तो आ गया. So here refusal, so here it is definite acceptance. So out of 50 in the upper deck, I just have to seat 40 of them. So 85C, 40. Or I could also do like this. So 85 people are standing outside. I will think in terms of lower deck. So 15 people have refused in the upper deck. That means they have definitely come in the lower deck. So for the conductor, only option is 60 minus 15. 45 का option है. And interestingly, 85C40 is same as 85C45. Right? Okay, if you've understood. Mohina, did you understand क्या mistake है? अंकित समझ में आया? So this is the answer. So rejection thing one is important. आगे बढ़े. एक छोटा सा एग्जाम ये देखो, एक क्वेश्चन बनाओ. नेक्स्ट, सपोज I have 4 balls B1, B2, B3. टॉपिक का नाम लिख लो groupings. I have 4 balls and they are different balls. And I want to make a group of 3 and 1. Question number 1. Answer is 4 में से 3 चूज करेंगे, 4C3. Next, I want to make a group of 2 and 2. How many ways can I do? So I have 4 different balls. I want to make a group of 2 and 2. So selection है, तो क्या क्या हो सकता है? B1, B2, B3, B4 और B1, B4, B2, B3 और B3, B1 and B2, B4 और कुछ और हो सकता है कि B2, B4 होगा एंड B3, B1 होगा. इस तरीके से और केसेस आएंगे. बट यू कैन सी दैट 3 अलग, ये वाला जो है ये यही है, B2, B4 इस ग्रुप में या तो B3, B1 इस ग्रुप में. तो 2 अलग अलग ग्रुप है, राइट? बट ये तो सेम आइटम है. इधर से इधर देखो, इधर से इधर देखो. So in cases where you want to make equal groups, then you need to divide by the number of groups. So here answer will be 4C2. जो रिजल्ट आएगा इसको 2 अलग अलग ग्रुप है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तब आंसर आएगा आपका 6/2, दैट इज 3. एनी डाउट? नहीं समझ में आया? फिर से देखो. मान लो आई हैव 12 chocolates and all are distinct. I want to make 3 groups. And these 3 groups, suppose I want to put them in 3 boxes. Box 1, box 2 and box 3. 3 boxes are different. And I want to divide them equally.
इक्वली मतलब क्या, सब में 4 4 होगा, और ये तीनों बॉक्स अलग अलग है, तो आंसर क्या होगा 12C4। अब बच गया 8, 8 में से अब इसको कितना मिलेगा 8C4, और अब बच गया 4, 4 में से डेफिनेटली 4 को एक तरीका। ये कब, बॉक्सेस जब अलग है। बट सपोज बॉक्सेस आर सेम, तो आंसर यही होगा, बट डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, मान लो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो आप समझ रहे हो अंदर जो चॉकलेट्स हैं आपको बाहर से तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सो बॉक्सेस आर एक्चुअली सेम, सो दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस अलाइक एंड दिस अलाइक, तीनों अगर अलाइक्स ग्रुप्स हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। सो दिस इज व्हेन बॉक्सेस आर अलाइक, राइट? ओके, अंडरस्टूड। Everybody please आप इसको ऐसे समझो, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो ABCD है, आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो 2-2 का ग्रुप बनाना है तो आपका आंसर क्या होगा, 4 में से 2 को चूज करना, 4C2, दैट इज 6 वेज। 6 वेज लिस्ट डाउन करो तो जरा, ABCD, ADBC, BDAC, और क्या होगा CDAB, BCAD, ACBD। बट यू कैन सी दैट इसमें से ये पहला वाला दूसरा वाला तो इधर वाला इधर है, अगर एक इंडियन क्रिकेट टीम है, इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर ये लेफ्ट में या राइट में, या तो ये राइट में या लेफ्ट में, तो एक ही तो है टीम, तो सिलेक्शन आपका तो ये 2 इधर आया 2 इधर आया। तो अगर इंडिया पाकिस्तान है तो इट इज लाइक 2 डिफरेंट, बट सपोज 2 सेम ग्रुप्स बनाना है, तो ये अगर मैं 2 सेम ग्रुप बनाता हूं तो ये मैं 3 केसेस को हटाऊंगा, इसी कारण आंसर बाय 3 फैक्टोरियल होगा, सॉरी 2 फैक्टोरियल, तो इसी कारण आंसर 3 वेज होगा, 1 2 3। अगर मान लो अलग अलग ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप का नाम अगर GG है देन आंसर इज 3 वेज, एंड दोनों ग्रुप का नाम अगर G1 और G2 है then Sachin and Dhoni here, and then Sachin and Dhoni here is a different case. Sachin Dhoni in India and Sachin and Dhoni here in Pakistan. So there are different cases like that. So agar groups are identical, then divide by those number of groups ka factorial. If the groups are different, then no need to divide. Practice karo. 30 people. Make 3 groups. ग्रुप का नाम है GGG, 30 पीपल। अच्छा ये इक्वल ग्रुप्स है, ठीक है, इक्वल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। 30 पीपल, एक ग्रुप का नाम G1, एक G2, एक G3। आंसर बनाओ जल्दी। राइट, डन। This is the last question for the first session. Write done and then we end this first session. Make equal groups. So 10 10 10 का ग्रुप बनेगा, तीनों ग्रुप सेम है, so 30C 10 into 20C 10, 30 में 10 बच के 20 बच गया, फिर 10C 10 but divided by 3 factorial. This one 30C, यहाँ भी 10 10 का ही बनेगा, but 3 groups are different.
30C10 into 20C10 into 10C10 divided by कुछ नहीं होगा. This is the answer. ठीक है? Not writing down, not solving, seems you are tired. All right, no issues. We meet after the break. That's it for today. Thank you. We start at 1 p.m.